गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है आपका कुछ टेस्टेज प्रॉब्लम है और ये आपको शायद सपोर्ट करेंगे। मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये आपके पास लिस्ट फर्स्ट है और एक लिस्ट सेकंड है। पहले केस में है हमारा डिसलिरेशन, डिक्रीजिंग, और दूसरा है डिक्लेरेशन इंक्रीजिंग, और थर्ड है एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग, और फोर्थ है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक ग्राफ आपको दे रखा है ये, और V और T के बीच में दूसरा ग्राफ आपको दे रखा है ये T और V के बीच में, और ये V और T के बीच में, और एक ग्राफ ये दे रखा है ये V और T के रिलेशन में, एक आपको ये दे रखा है V और T के रिलेशन में। तो देखिए ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का तो ये है ये, और डिसलेशन का है ये, और डिक्रीज एक्सेलरेशन का है ये, और ये वाला जो है इसके साथ।
अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। तो मोशन स्ट्रेट लाइन में ये कह रहा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ए मैकेनिक्स। यानी कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट जिसमें हम किसी भी पीपल को ऑब्जर्व करते हैं मॉर्निंग में वॉकिंग अराउंड करते हुए फुट के द्वारा या किसी बाइक के द्वारा या किसी कार के द्वारा या किसी ट्रेन के द्वारा या एरोप्लेन, ये सभी हमारी एक बॉडी को हम ऐसे बॉडी सेट टू बी इन मोशन, ऐसी वस्तुओं को हम मोशन कहते हैं। व्हेन इट द चेंजेस विद द टाइम इट इज द पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू द सराउंडिंग इन दिस यूनिट वी शैल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, speed and velocity, uniform and non-uniform, relative velocity. We shall investigate the further the application of these concepts in day-to-day life. The branch of physics which deal with the study of motion of material object is called as a mechanics. अगर हम बात कर सकते हैं कि the branch of physics which deal with the study, the branch of physics, the branch of physics which deal with the study of motion, with the study of motion of an object is called mechanics. It's called is mechanics. This is the object is mechanics is the motion of the three types. First is the mechanics branches of the statics, and second is kinematics, और थर्ड इज डायनामिक्स। तो यानी कि हमारे पास तीन स्टेट में टूट जाता है कि स्टैटिक्स और काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। तो स्टैटिक्स कहता है इट इज द ब्रांच ऑफ विच डील विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रेस्ट। यानी कि ये कह रहा है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of object is always rest, is always rest. This is the body is object with the study of object is always motion in straight line. With straight line or taking into account the factor which causes the motion. Dynamics, it is the branch of mechanics which deals with the study of motion of object taking account to factor इस कॉज इज ए मोशन। यानी कि दोनों में ही हमारे में एक काइनेमेटिक्स मोशन है। काइनेमेटिक्स दिस इज द बॉडी इज ए मोशन ऑफ ए ओनली ड्राइव इज मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, किसके साथ, विद डिस्प्लेसमेंट
distance, acceleration, velocity and time. Dynamics is the branches of the motion of a object, maybe motion of translational motion or rotational motion, circular motion. यानी कि in this case of a branch is a mechanics, a motion of a translational motion, maybe in meanings of the power, cause of motion, dynamics base of the concept of the force. Next topic is the object in motion. So rest an object is said to be at rest if it does not change its position with time with respect to it is the surrounding. A book lying on the table, a person sitting in a chair are example of rest. Object is said to be in the motion if it is the changes of the position with time with respect to surrounding. A bird fly in the air, a train moving on the rail, a ship sailing on water, a man walking on a road are some of the example of motion visible to the eye. Motion of the gas molecules is an example of a motion invisible to the eye. Rested motion of the relatives, example of a buildings, pole, tree, house. This is the object is always rest, but the motion is a water flow in the river. This the water is the motion of in the river. Is case of a motion of the object. This is the type of the motion of a body. So rest and motion are relatives. It is the means on the object in the one situation can be rest, but in the another situation the same object can be the motion. For example, a person sitting in a moving train is at rest with respect to the flow passenger, but is the motion with the respect to the object outside the train. Similarly, a person sitting in his house is at rest, earth, but is motion other with respect to other planets. तो बहुत सारी चीजें हमें बताई जा रही हैं. हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करते हैं, हम मोशन की बात कर रहे हैं, हम रेस्ट की बात कर रहे हैं. ये सारी चीजें हमारी क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिसाइड करती हैं. कोई भी वो जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है किसी अदर प्लैनेट के रेस्पेक्ट में, तो भी हम कह सकते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज मोशन. जैसे कि हम मान रहे हैं कि हम अर्थ पर स्टैंडिंग है, लेकिन अर्थ जो है अर्थ के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में है, लेकिन अर्थ मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू सन या अदर प्लैनेट्स, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग ऑन द आउट ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू द सन. So that is the case of a physics is the fundamental, so be the object dependent due to intervals of the time, which is the object is rest and object in motion. So rest is the defined is the object is always rest due to time, does not change of a position, does not change of a position. This is the object is rest. Buildings हैं, पोल हैं, ट्री हैं, ये सभी हमारे जो पॉइंट कंसीडर केस डिफाइन होते हैं, ये सभी हमारे जो है किसको डिफाइन करते हैं, ये रेस्ट को डिफाइन करते हैं. अगर हम किसी मोशन की बात करते हैं तो मोशन में क्या है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर लेता है. अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द ऑब्जेक्ट इज मोशन, बिकॉज दैट इज मीन्स हम ये कह सकते हैं मैन वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, है ना, ए कार, ए बसेज, है ना, साइकिल, बाइक, अदर बाइक, जितनी भी चीजें हैं ये सभी मोशन में आती हैं. आप ये भी कह सकते हो कि ए वाटर फ्लो इन द रिवर, दिस इज द मोशन, है ना. आप ये भी कह सकते हो दी प्लैनेट्स, है ना, रिवॉल्यूशन विद रेस्पेक्ट टू सन, दिस इज मोशन, है ना. ए ऑब्जेक्ट इज मॉर्निंग वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, दिस इज द ऑब्जेक्ट इज मोशन. A cycle, a man is running of a cycling, this is the on a ground, this is a object in motion,
या ए मोशन ए ऑब्जेक्ट इज रनिंग ऑफ ए car. So this is the object is running in a car because which is the person sitting inside the car. But in of an object, in sit on cycle, sit on bike, but car, buses are inside train, inside in the car, inside the buses, inside the train, but not the outside. But object is moved on the bike, but not is a word of a use of on because क्योंकि वो छत के ऊपर नहीं बैठा है, वो बस के अंदर बैठा है, इसलिए आप उसमें इनसाइड द कार यूज करेंगे, इनसाइड द बसेज यूज करेंगे, इनसाइड द ट्रेन यूज करेंगे। लेकिन अगर हम बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो उस पर आप ऑन दी साइकिल के ऊपर आप डिसाइड करेंगे। क्यों? वो ऊपर होके ही चलती है, ऊपर उसके बैठ जाता है, ऑन दी, है ना, ऑन दी। और ऑन दी का मतलब हो गया ऑब्जेक्ट का बैठ जाना। ये सभी केस हमारे जो आते हैं ये इसी के लिए आते हैं। सो आज इतना ही आज के लिए, फिर कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।